فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ پروردگار عالم، خالق کائنات، مالک ارض و سما، انتہائی کمزور بندے تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ خالق، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں ان ہستیوں کو ماننے کے ساتھ ان ہستیوں کی ماننے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے تھے اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا؟ پروردگار عالم، مالک کون و مکان، دل کی آنکھیں کھول دے۔ خالق، تو نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق، دل کی آنکھیں کھول دے، کم از کم اتنی کھول دے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کونین، ہر دور میں ہر ذی روح زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، تبرک، نیاز، لنگر، گھر میں جو کچھ کھائے پروردگار سب کچھ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ورثہ سادت و مومنین جن کی وجہ سے آج ہم بیٹھے ہیں، خالق جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام نشان۔ پروردگار، قبولیت کا ٹائم ہے، یقیناً تو نے کچھ گھڑیاں رکھی ہیں، یہ تمام مومنین کے ہاتھ بلند ہیں، لائیو چل رہی ہے، جہاں جہاں مومنین سن رہے ہوں گے انشاءاللہ سب مل کے آمین کہیے گا۔ خالق، جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔ پروردگار، ہمیں فیصلے کرنے کی بجائے امام پہ فیصلے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کون و مکان، اس پورا شعب دور میں سادت و مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما، جو ہے بیٹھے ان کی چھوڑیاں خیر سے بھر دے، جو بے اولاد ہے ماں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، صاحب الزمان کے لشکر کا سپاہی عطا فرما، جو بے گھر ہے امام کے انتظار کا عطا فرما، جو پریشان حال ہے برکت یوم زمان سے خالق کونین پریشانی دور فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ آپ نے میرا انتظار کافی کیا، ادھرتی لیٹ ہوتے ہوتے پہلے صبح گئے کانڈی والا آپ کے چنیوڑ سائٹ پہ، وہاں سے پڑھ کے سیدھا موٹر وے سے پہنچے عبدالحکیم مولا کے کرم سے، وہاں سے پڑھتے پڑھتے آپ کے پاس آپ سے پڑھ کے پھر لاہور سرکار کا جی مہربانی برادر محترم، خدا کی قسم میری مہربانی نہیں اسی کی ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ مہربانی مہربانی مہربانی، میرا کوئی احسان نہیں بانی پہ، آپ پہ، علاقے پہ، کسی پہ کوئی احسان نہیں، بلکہ ہم سب پہ اس کا احسان ہے جو ہے تو ہم ہیں۔ شاباش، میں شکر گزار ہوں، مہربانی۔ برادر محترم علی 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 برادر محترم نے میرا تعارف کرایا کہ سید کا جملہ اچھا لگتا ہے کہ جن کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مجھے قسم اس مقدس منبر کی، باکمال ذکر کی، ذکر میں موجود تخلیق کائنات نہیں بلکہ وجہ کائنات خاندان کی، سب کی اتنی بڑی قسمیں کھا کے جا رہا ہوں۔ خدا کی قسم علی ہے ہی اتنا قیمتی، پیسوں میں نہیں بکنا چاہیے۔ مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ حضور، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کی معیار سماعت کے کیا کہنے؟ گل سنی پیسے نہ میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا نہ، پیسے تیری مہربانی، مولا تنو خوش رکھے، میں بسم اللہ، میں مولا تنو خوش رکھے، پیسے نہ، اتنی سے میرے کل بہ جا، پیسے نہ، وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ مہربانی حضور، مہربانی حضور،
اس مقدس ذکر کی قسم، یا علی پیسے آتے برے نہیں لگتے، کس کو لگتے ہیں؟ بندہ خراب پتی بھی ہو کوئی لے جائے چھوڑتا ہے نہیں، پر کربلا کچھ اور کہتی ہے۔ میں نے کربلا کو دستک دی، میں نے کربلا سے پوچھا تو کیا چاہتی ہے؟ صدیہ ہو گئی تیرا ذکر کرتے کرتے کرتے، کہتی بس میں ایک چیز چاہتی ہوں اگر دے سکے۔ میں نے کہا کیا؟ کہا میں لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ شاباش شاباش، مہربانی یار، مہربانی حضور۔ مہربانی، میں لالچی کو قبول نہیں کرتی، میں لالچی کو چھٹی دیتی ہوں۔ کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کسی چیز کا بھی لالچی ہو، چھٹی دیتی ہوں، دے دیتی ہوں۔ کربلا کی مٹی چاہیے لے جا، کفن چاہیے لے جا، جنت چاہیے لے جا، جو جو مانگنے ہیں دیتی ہوں۔ میں نے کہا کربلا تو کیا چاہتی ہے؟ یہ تو ہم ہے نا چاہتے ہیں یہ مل جائے یہ مل جائے۔ کہتی ہے میں چاہتی ہوں کوئی آئے پتہ نہیں کیسا ہو، جائے تو حور بن کے جائے۔ اللہ کرے کسی کو مہربانی، یہ ہے مقصد، یہ ہے مزید۔ میں چاہتی ہوں مہربانی، میں چاہتی ہوں ریت امام کے مزاج بدلیں، سوچیں بدلیں۔ جو میں دینا چاہتی ہوں وہ لینا کوئی نہیں چاہتا، جو یہ لینا چاہتے ہیں ہم وہ بھی دے دیتے ہیں۔ قسم سلطان کے ذکر کی، کربلا لالچی قبول نہیں کرتی۔ کوشش کیا کرو اس گھر سے متعلق کوئی کام بھی کرو، شکریہ ادا کیا کرو۔ مجلس کراؤ شکریہ، مجلس پہ جاؤ شکریہ، لنگر پکاؤ شکریہ، لنگر کھلاؤ شکریہ، امام بارگاہ بنواؤ شکریہ۔ مہربانی، احسان نہیں، میں نے امام بارگاہ بنوایا۔ ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی، کہنے لگے شاہ جی میں نے 4 کنال امام بارگاہ کو دی ہے۔ میں نے کہا تیرا کہنا اس وقت بنتا ہے جب تو پیچھے سے لایا ہو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مہربانی یار، کوئی لایا ہم میں سے پیچھے سے؟ نہیں، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کی عطا ہے، یہ ان کا شکریہ، انہوں نے قبول فرمایا۔ اس لیے کبھی بھی اس گھر کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا، بلکہ مجلس سے باہر جاؤ، وہ پوچھے کہاں گئے تھے، یہ نہ کہنا میں گیا تھا، کہنا امام نے بلایا تھا۔ شاباش شاباش شاباش، بہت شکریہ حضور، مولا نے بلایا تھا، مولا نے مجھے اس قابل بنایا تھا، میری اوقات ہی نہیں تھی۔ تو نے بڑا امام بارگاہ؟ نہیں، انہوں نے اپنا گھر مجھ سے بنوایا، ان کی کریمی ہے۔ اس دفعہ تو نے 10 دیگیں پکوا لی، میرے کو پیچھے سے، ان کا کرم ہے، انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، انہوں نے میرے ہاتھوں سے تبرک اپنا صدقہ پکوا کے اپنے چاہنے والوں کو کھلایا۔ مہربانی نوجوان، مولا تجھے خوش رکھے، عیب سے رہو، مہربانی یار۔ اصل میں ان کا قصور بھی نہیں، کیا کریں ممبر پہ کٹھے جو بھکاری ہو گئے۔ ایک میں بات سخت کر کے جا رہا ہوں، بہت شکریہ حضور، قسم اس مقدس ممبر کی، میں بات پتہ نہیں کیوں قسمیں اٹھا رہا ہوں، اٹھاتا نہیں ہوں۔ ہم سب لوگ کونیوں کے بل چل کے بھی حسین بتانے آئیں، پھر بھی حسین کے مقروض ہیں۔ میں حقیقت بات بتا کے جا رہا ہوں، یقین کیجئے۔ مہربانی حضور والا، بہت شکریہ حضور والا، حیدری۔ ہم بادشاہ کے مقروض ہیں، بنتا ہی نہیں۔ میں اس کے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس، چلے گئے کہیں آ جاتے ہیں ابھی، ڈاکٹر صاحب کے پاس میں آیا، ڈاکٹر صاحب نے جاتے جاتے مجھے کہا شاہ جی یہ نیاز ہے، لفافہ نیاز۔ نہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو کہوں گا جو 19 سال پہلے بانی کو کہا تھا، ڈاکٹر صاحب یہ نیاز نہیں، ماں سے پوچھو کیا کہا تھا پہلا لقمہ کھلا کے، نظر اللہ، نیاز نہیں، مہربانی یہ نیاز نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات مشکل سے کرنے لگا ہوں اور بڑے آرام سے کرنے لگا ہوں تاکہ آپ کے کانوں تک نہ صرف پہنچے بلکہ دل کے کانوں میں سما جائے۔ یہ ہم لوگ جاتے ہیں کربلا کفن لینے، حضور غور فرمائیے گا، واجب علیہ السلام، ہم جاتے ہیں کربلا کفن لینے۔ بات کر کے آ جائے نا، میں پھر بات کرتا ہوں، دوست ادھر دیکھنے لگے، کوئی بات نہیں، اب درود کا تحفہ لے محمد کی بارگاہ میں، کوئی بات نہیں، کوئی ضروری بات ہوگی، میں نہیں پریشان ہوتا، نہ میں بچوں سے نہ میں ایسی چیزوں سے۔ ہر مومن کی عزت کیا کرو، فیصلے مولا پہ چھوڑو، بالکل کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی،
जैसे लोग कहते हैं शाह जी उनको मेरा तो अकीदा ही नहीं मिलता। मैंने कहा फिर मरने के बाद एक वसीयत करना, कब्रिस्तान अलहदा बनवाना है। क्या बात है यार, क्या बात है यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। फिर मरने के बाद कब्रिस्तान अलहदा बनवाना, सोना भी इकट्ठे है और मरने के बाद इकट्ठे होते हो, जिंदगी में इकट्ठे हो जाओ ना। मतलब भाई बैठे होंगे, मैं एक खूबसूरत तोहफा मतलब ये आपके लिए, लाहौर वालों के लिए जो आए हुए हो और दोस्तों के लिए जो बैठे हो खसूसन देने लगा हूँ। हम जाते हैं, हजूर मेरी तरफ देखिएगा, हम जाते हैं करबला का फल लेने, लेकिन इश्क करबला कुछ और कहता है। अभी तक मेरे मुताले में नहीं आया, आप में से किसी के मुताले में हो तो मेरी जरूर मदद फरमाइएगा। कौन सी बात जो मैं अब करने लगा हूँ। सरकार ने शब आशूर, हुसैन बादशाह ने शब आशूर, बादशाह मुअज्जम ने शब आशूर, आकाए मुकर्रम ने शब आशूर, जमाने के हादी ने शब आशूर, एक वक्त में एक जगह होके हर जगह मौजूद ने शब आशूर। कोई अहले सुन्नत बैठा होगा इधर, बैठे हैं बहुत ज्यादा। अल्लाह खुश रखे आपको मेरी इस बात से। अगर आपका इत्तफाक ना हो रहा हो, मैं एक छोटी सी दलील पेश कर देता हूँ, दावा मैं कर गया। एक होके हर जगह मौजूद अल्लाह का आदल है। खालिक ने किसी को वक्त मालूम तक मोहलत दी थी भटकाने की। मेहरबानी, मैं पहाड़ जितना वजनी दलील देके जा रहा हूँ। मेहरबानी, खुदा ने, खुदा आदिल है ना, वक्त मालूम तक की मोहलत दी थी भटकाने की। उसने भी कहा था मैं बैठूंगा तेरी मखलूक को भटकाऊंगा। आगे परवरदिगार ने भी बड़े फख्र से कहा जा भटका पर मेरे वाले तेरे हाथ नहीं आएंगे। बहुत खूबसूरत हजूर। अली 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 या शाबाश बेटा, मौला खुश रखे बेटा, शाबाश मेरे बच्चे। इनको रोका ना करो, बच्चे छोटे छोटे खड़े होकर नारे लगे, इनका हौसला, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है। हाँ शाबाश। और यकीन करो हम जो बचपन में बैठ के सुनते थे आज तक नहीं भूला। ये दोस्त बैठे हैं, आप भी तशरीफ फरमा। हजूर मैं छोटा सा था, जितना होगा, एक साहब आए उधर मवद्दत पे खमसा पढ़ा, मवद्दत पे खमसा पढ़ा। खमसे के बाद उनसे जो तय हुआ था उसमें से 5000 कम हो गए। बड़ी पुरानी बात है, 5000 कम हो गए। वो साहब खड़े हो गए, नाम नहीं लूंगा, अपने घर की बात है, इशारा ही दूंगा। लो जी खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी पहले पैसे पूरे फिर जाऊंगा। छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, जब मैंने वर्क गर्दानी शुरू की इस घर से, मैंने तौफीक शऊर अर्ज की तो जो अता हुआ वो ये था 5000 कम। जो भी डील हुई बता रहे हैं मवद्दत। अच्छा नहीं लगता, मवद्दत हाथ फैलाने को नहीं, हाथ ऊपर रखने को कहते हैं। मेहरबानी 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 मेहरबानी। मवद्दत हाथ फैलाने को नहीं कहते, मवद्दत हाथ ऊपर। ये जैसे कहते हो ना लब्बैक, ये मवद्दत है। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर, तू आर्डर लगा, मैं हाजिर, तू हुक्म कर, मैं हाजिर। यहाँ मैं मवद्दत सिखाने के लिए एक छोटी सी बात, बेटा आपने गौर करनी है, मेरे बच्चे जो छोटे छोटे बैठे हो ना, ये बड़ा काम आएंगे बच्चों। हजूर आपका इसमें ग्रामी साबिर हुसैन बिरादर मोहतरम बिरादर ज़ीबकार साबिर साहब बैठे। हो सकता है कि मुलाकात हुई उनकी, मैंने इनकी ज़ियारत की, मुझे याद नहीं है, लेकिन चूंकि मेरे सामने बैठे उन्होंने इतना बड़ा तारुफ करा दिया। हालांकि तारुफ के लायक वो है जो बेदाग है। मेहरबानी, वो हमारे ज़माने की हुज्जत है, तारुफ उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन दुख, मैं साबिर कौन कौन से दुख बयान करूँ। दुख ये है इश्तहार छपता है जो वजह तारुफ है, उसका नाम इतना छोटा सा, ज़ेरे सरपरस्ती कायम आले मोहम्मद, हम जैसे नाअहलों के नाम इतने बड़े। शाबाश शाबाश, ये मेरा दर्द दिल था जो मैं कह गया। मेहरबानी हजूर। हम जैसे किताबों की, बहुत शुक्रिया, किताबों की बिसाखियों का सहारा लेके चलने वाले, हमें क्या पता हकीकत है क्या, हमने तो किताबों से सीखा। हम जैसों के नाम इतने बड़े बड़े, जिसके ज़ेरे सरपरस्ती उसका नाम इतना छोटा। साबिर भी दुख वाली बात है ना।
अफसोस वाली बात है, ये ट्रेंड भी चेंज करने की बोल। ज़ाकिरीन के नाम छोटे आ जाए, ऊपर नीचे आ जाए, वो मजलिस नहीं पढ़ते कि हमारा नाम छोटा है। भाई साबिर आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल मेरी आसान कर दी। कोशिश करो, ऐलान करके जा रहा हूं जंग की सरजमीन पे, लिख छोटे नाम सबके, मुझ समेत साहिब का नाम बड़ा लिख, कोई आए ना आए 14 तो आते हैं ना। मेहरबानी, मेहरबानी जुबान, बिस्मिल्लाह हुजूर, मेहरबानी हुजूर, मेहरबानी हुजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह आपकी क्या बात है, आपके मयार समात की क्या बात है, कोई ना आए 14 तो आते हैं। थोड़ा सा ये ट्रेंड सेट करो, आधे इश्तहार में सरकार के लक़ब लिखो, ज़ेर सरपरस्ती हुज्जत दौरा, शरीकल कुरान, खलीफतुर रहमान, आयतुल्लाहिल उज़्मा, सुल्तान मुअज़्ज़म, खलीफतुर रहमान, कामिल कुफ्र व तुग़यान, दाफ़िय ज़ुल्म वल उद्वान। इस मिंबर का वारिस, इस जिक्र का वारिस, अलम का वारिस, झूले का वारिस, सलूनी का वारिस, मिराज का वारिस, मुबहले का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना के जुल्फों का लिखवाओ। मेहरबानी हुजूर, सरकार के अलकाबे ताहिरा लिखवाओ। कितना दुख की बात है, जो है तो हम हैं, जो है तो ये जिक्र है, जो है तो जुलूस है, जो है तो मजालिस है, जो है तो अब्बास का आलम सर बुलंद है, जिक्र हुसैन जारी है, कोई है तो है। मैं उनसे बिल्कुल मुखातिब नहीं हूँ जो ये कहते हैं मैं 250 साल से, 300 साल से, 200 साल से, 150 साल से मैं मजलिस करा रहा हूँ या हम मजलिस करा रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। जो मैं करते हैं ना, मैं उनसे मुखातिब नहीं हूँ। मैं उन आशिकों से मुखातिब हूँ जो कहते तू है तो सब कुछ है। एक साहब कहने लगे सैयद कोई इल्मी दलील दे जाते तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने कहा किस हवाले से? कहने लगे आप कहते ना कोई है। मैंने कहा मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तारीख में बड़े बड़े कत्ल हुए, यकीन करो बड़े बड़े कत्ल हुए, कुछ अरसा याद रहे फिर भूल गए। हुसैन का कत्ल भुलाया ना जा सका, उनके वारिस नहीं थे, हुसैन का वारिस हो गया। शाबाश शाबाश शाबाश, मेहरबानी हुजूर, हैदरी। इसलिए आधे इश्तिहार पे सरकार के अलकाब होने चाहिए। कोई आए तो बिस्मिल्लाह, ना आए तो बिस्मिल्लाह। कुछ नहीं होता यार, क्या हो गया? कोई आएगा तो मजलिस होगी, नहीं 14 आ जाते हैं मजलिस हो जाती है। इनको भी हाथ बांध के अर्ज कर दिया करो, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं। एक सैयद हमारे इलाके में आया था, जंग में इमाम ने भेजा था, वो एक बात कर गया, कोशिश करो दुनिया में मशहूरी का फायदा नहीं, अर्श पे हो जाओ। मैंने मासूम का फरमान पढ़ा। मेहरबानी साबिर साहब, बहुत शुक्रिया साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, पहुंचाने को सलाम है। मासूम फरमाते हो हमारा आशिक, हो हमारा शिया, हो हमारा मोती, हो हमारा मुंतज़िर, हो हमारा सच्चा सुच्चा। घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया वाले जाने ना जाने, अर्श वाले बड़ा जानते। और यकीन करो दुनिया वाले क्या, आज इतना बड़ा नाम होगा, वही थोड़ी सी ऊंच नीच होगी, कल को यही खड़े होंगे, ये तो था ये। इनके सामने बड़ा बनने की क्या जरूरत है? ऐसे है ना हुजूर, बात जरा मुश्किल थी, मैं कर गया, लेकिन आपकी मोहब्बत है, आपने कबूल फरमाई। बड़ा किसी के सामने बनने की जरूरत नहीं, बस मुती बन जाओ, उसकी आंखों में बड़े हो जाओगे। बंदे कहेंगे सैयद झंग इस मकाम पे पहली दफा आए, अगर बड़े हो गए तो कोई कमाल भी मिलेगा। मैं कहा हाँ, डॉक्टर इकबाल ने मुझे बताया। हजूर मेरी तरफ देखना, वाजिबुल एहतराम काबिल कदर वो जो बैठे हैं, आपने मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना, बच्चे हमारे अपने, आप आगे तशरीफ लें मेरे पास, मैं आपकी ज़ियारत करता रहूँ। मासूम बच्चे हैं, कोई बात नहीं, बैठे, आप इधर आ जाए।
मैंने कहा मैं मित्र देखिएगा हुजूर, अपने मित्र देखने, उनका और मेरा मामला है, अपने मित्र देखने। अच्छा जी, सारे काबिल एहतराम है ना, काबिल कदर है। लो जी, अगर कमाल आ गया तो क्या होगा? मैंने कहा डॉक्टर इकबाल से मैंने पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर हम वाकई कमाल पे आ गए, अगर उसने पहचान लिया तो क्या होगा? कहा दुनिया में तुझे कमाल मिलेगा। डॉक्टर साहब जल्दी बताओ क्या कमाल मिलेगा? डॉक्टर साहब ने कहा फिर खुदा बंदे से खुद पूछे, बताते नहीं लगा। भाई शाबाश, भाई शाबाश, मेहरबानी, मेहरबानी। शाबाश हैदरी, या अली, या अली, या अली, आपकी क्या बात है। मुझे मेरी कोई तफसीलन मुलाकात डॉक्टर साहब से बहुत तफसीलन नहीं हो सकी, अगर होती तो मैं डॉक्टर साहब को कहता इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे सवाल लिख के मिंबर पे रखो, साथ साथ जवाब दे जाओ। कुछ सवाल पीछे रखे थे कबीर वाला वालों ने, एक दो जवाब रह गए, वो देता जाऊँ। बंदे ने मेरे से पूछा सैयद ये बताओ, 4-5 सवाल मेंबर पे रखे, 2-3 जवाब दे सका, वक्त ही पता नहीं चला, वक्त निकल गया। बस 2-3 सवाल देते, छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, 2-4 जुमले मसाइल और इजाज़त लेंगे। अब जब थक जाओ मुझे इशारा कर देना सैयद या आली मदद, जब थक जाओ। नहीं, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हैदरी, हाँ बिस्मिल्लाह कर, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हैं जी। आए खुदा की कसम इस कौम के लिए हाजिर हूँ, लेकिन थोड़ा फर्क महसूस करे, दिहाड़ीदार कौन है और मौला के लिए कौन है, थोड़ा सा फर्क, मेहरबानी, थोड़ा सा फर्क महसूस, मेहरबानी। अल्लाह अकबर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, या रसूल अल्लाह। अच्छा चलो एक छोटी सी बात, सवालों के जवाब भी मैं अर्ज करता हूँ, छोटी सी बात अर्ज करता जाऊँ। मोमिन के बारे में जो मासूम का फरमान है, मैं उस पर एक जुमला अर्ज करता जाऊँ। इमाम फरमाते हैं मोमिन की निशानी ये है, मोमिन बाबसारत भी है, बाबसीरत भी है। मैं अपनी नौजवान नस्ल को, बच्चों बेटा मैं आपको बताता जाऊँ, बसारत होती है ज़ाहिरी आँख जिसे देखे, बसीरत होती है जिसे दिल की आँख देखे। अब ये ना हो कि बाद में मेरे खिताब के बाद को बंदे कहें आपने कैसा सैयद बुलवा लिया, हमें बताया नहीं कि दिल की भी आंखें हैं। मुझे नहीं पता था, मैंने मासूम का फरमान पढ़ा। आपके चौथे लाल विलायत तशरीफ फरमा है, सरकार मौज़म तशरीफ फरमा है, आक़ाए मुकर्रम तशरीफ फरमा है, मौलाए कुल तशरीफ फरमा है, मोहम्मद की शबी तशरीफ फरमा है, अली का अक्स तशरीफ फरमा है। मेरा दिल चाह रहा है मैं सैयद सजाद पे भाई साहब एक जुमला कह जाऊं, पता नहीं सामने आ गया। वैसे सैयद सजाद आपके भी क्या कहने, अली की मौजूदगी में कोई अली से अली कहलवाए उसे सज्जाद कहते हैं। मेहरबानी साबिर भाई, बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। आपके क्या कहने यार, वो जो मैंने अहले सुन्नत का तज़किरा करके बात की थी, मुझे याद करेगा, मैं भूल ना जाऊँ। बड़ी कमाल बात है, वो मैं दलील देता हूँ। अल्लाह ने वक्त मालूम तक की मोहलत दी, वो भी अर्ज करता हूँ। मौला का फरमान सुना दो। सरकार ने फरमाया अल्लाह ने हर इंसान को 4 आंखें दी हैं, 4। सरकार खुली तो 2 है, फरमाया 2 भी खुलती हैं जो अंदर है। सरकार कब खुलती है? फरमाया जब अल्लाह चाहे। सरकार इसका मतलब है जब तक अल्लाह ना चाहे नहीं खुलती। फरमाया जब बंदा चाहे वो भी खोल लेता है। मेहरबानी, जब बंदा, बहुत शुक्रिया हुजूर, जब बंदा चाहे वो भी खोल लेता है, वो तैयार है कोई खुलवाना चाहे तो। अच्छा जब दिल की आंखें खुल जाए ना, मयार बदल जाता है। खुदा की कसम, जब दिल की आंख खुल जाए बंदा किसी की गीबत नहीं करता। पक्की बात बता के जा रहा हूँ, जब दिल की आंख खुल जाए किसी का गिला नहीं करता। जब दिल की आंख खुल जाए, इनके कपड़े, इनका मोबाइल,
इनकी गाड़ी, उनके किले, मुझे क्या लगा? सुबह से लेकर शाम तक, इसके तो पिछले साल 10 किले थे, 10 एकड़ थे, आज 25 एकड़ हो गए। नहीं, दिल की आंख खोल जाए तो मयार ये होता है अल्लाह इसे और दे। किसी ने कोनी मारी शिया को, मोमिन को, दिल की आंख जिसकी खुली थी, उसने कहा तू अजीब बंदा है, तू उसको दुआ दे के जा रहे अल्लाह ही ने और दे। कहा मैं जलने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा क्या मतलब? उन्होंने कहा जो दुनिया में जलता है वो आगे भी जलता है। हैदरी, अच्छा बात सुने, जाने दे, मासूम है, जाओ इधर से आ जाओ मेरे बच्चे, इधर से गुजर जाओ, आ जाओ। दिल की आंखें खुल जाए ना, मयार बदल जाता है, खुदा की कसम। फिर मयार ये लाइट की टेक लगा के मोबाइल देखने वाला दोस्त मेरी तरफ देखना, बड़ा कीमती तोहफा, बाद में कर लेना, बस अभी मैं जा रहा हूँ, इशारा दे देना कि सैयद या अली बदल, मैं चला जाऊंगा, थोड़ी देर तक मेरी तरफ देखो। खतीब नहीं, जिसको सामने वाले बंदों का मिजाज की समझ रहा है। मैंने 2-4 जमाइयां देखी, 1-2 मैंने देख ली हैं, 2-4 और देखी, मैं समेट लूंगा गुफ्तगू। तंग थोड़ा करने आपको, कुछ दे के तो जरूर जाना है। संभालो, जिंदगी में काम आएगा। आज क्या कर रहा था मैं आपसे? शाबाश, मेहरबानी बाबा जी। दिल की आंख खुल जाए तो क्या होता है? गीबत गिला खत्म, जबान पे दरूद। यार तूने उसकी वो 8 कनाल की कोठी देखी, तुझे असर नहीं हुआ? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। उन्होंने कहा वो देख, तेरे पास तो अपना घर नहीं, उसकी 8 कनाल की कोठी तो देख। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फरज आले मोहम्मद। मैं उसकी रजा पे राजी हूँ, मैं अमीर हूँ क्योंकि मेरे दिल में अमीर है, मेरे पास कुछ ना हो अली तो है ना। ये है मयार, जिसके दिल की आंख खुल जाए। भाई बहुत शुक्रिया, दिल की आंख खुल जाए तो मयार बदल जाता है, फिर बंदा इन चीजों से निकल आता है। ऐवी सारा दिन कीमती वक्त फजूल में जाए कर जाए नहीं, गौर व फिक्र में पड़ जाता है। मैं कौन, मैं कहाँ से आया, मैं किसके लिए आया, मेरा खैर खा कौन है, मैं लौट के कहाँ जाऊंगा, मैंने फिर उठना कब है। बड़े कीमती सवाल हैं। अगर मौका मिला तो मैं, टाइम मिला तो मैं एक सवाल पे एक जुमला अर्ज करूंगा। दिल की आंख पे 2-3 जुमले मैं और अर्ज करना चाहता हूँ, ताकि मेरी नौजवान नस्ल, जो बच्चे बैठे हैं, बेटे बैठे हैं, और मेरी बच्चियां भी यकीनन सुन रही होंगी, इनके जहन और ज्यादा खुले, दिल की आंख खुले, हया आ जाता है। भाई साबिर मुझसे को पूछे, सैयद ये हया आ जाते की बात हमें समझ नहीं आई। हो भाई, जिसकी दिल की आंख ना खुले वो औरतों को देखता है, जिसकी दिल की आंख खुल जाए वो औरत नजर भी आए मां बहन समझता है। ये है मयार। मेहरबानी, मेहरबानी। हैदरी, हैदरी, ये मेरी बेटियां, हैदरी, ये मेरी बेटियां बैठी हैं। बेटा आपके लिए भी है, दुनिया के हर मर्द को भाई बाप, भाई बाप। खुलवाओ दिल की आंखें, वरना यूं ही रोते धोते मर जाओगे। दिल की आंखें खुलवाओ, अल्लाह अकबर, कमाल आ जाएगा। खुदा की कसम, दरूद ही दरूद होगा। जो दरूद पढ़ते हैं वो बरूद नहीं बोलते। ये मोमिन की निशानियां खड़ा बता रहा हूं। इमाम को ऐसे लोग चाहिए, दिल की आंख खुल जाए, हाथ पाक होना शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं समझा नहीं सका। ये मेरी माँ ने, मेरी माँ से मुराद हम सब की माँ ने, बचपन में हमें अल्लाह में अब्बास पकड़ाया था ना, छोटे छोटे थे, एक छोटी सी लकड़ी के ऊपर कपड़ा डाल के, फरेरा डाल के हमें देती थी, जाओ जुलूस में। हमारी माओ के बड़े एहसान है। और जवान बच्चों याद रखना, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप के आगे बोलना नहीं। अली वाले बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, ख्याल करना। माँ तूने कुछ किया नहीं, तो मुझे रोटी नहीं देती ना बेटा, इसने तुम्हें अंदाजा ही नहीं, तुम्हें लोरियां देते हुए अली सुनाया था। मेहरबानी। हैदरी,
بیٹا ماں باپ کا احترام کرنا ہے، ماں کی بڑی بڑی کاوش ہے، باپ کی بھی بڑی کاوش ہے، اتنے سے ہوتے ہم اتنا بڑا کرتے ہیں۔ دل کی آنکھیں کھل جائیں۔ علامہ عباس جو بچپن میں پکڑا تھا سمجھ آ جاتا ہے، ارے بھائی علامہ عباس پکڑوا کر ہمارے ہاتھ کو کمال کر دیا گیا۔ صابر بھائی بات کر جاؤ، جو ہاتھ کمال ہوں وہ زوال پہ نہیں جاتے، بے مہربانی حرام پہ نہیں جاتے وہ ہاتھ۔ بہت شکریہ حضور، جو ہاتھ کمال پہ ہوں وہ حرام پہ نہیں جاتے۔ اور ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں جنگ کی سرزمین پہ، اور انشاءاللہ کان جو سن رہے کوشش کرنا، سنبھالنا بھی صحیح، میری طرف دیکھنا حضور، اور آگے پہنچانا بھی صحیح۔ ہم خوش نصیب ہیں جنہیں علامہ عباس کی زیارت نصیب ہے۔ کوشش کرو، آنکھیں خوش نصیب رکھو، حلال ہی دیکھتے رہو، حرام نہ دیکھو۔ اچھا تھوڑی سی بات اور بھی کرتا جاؤ۔ دل کی آنکھ کھلے اور نہ کھلے تو فرق کیا ہے؟ نہیں کھلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگر کھل جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان بھی ہے، اچھا رحیم بھی ہے، لیکن رحمان اور رحمینیت کا آغاز، رحیمیت کا آغاز اس نے بے سے شروع کیا۔ آج پتہ چلا بے کے نقطے میں کمال کیوں ہے۔ پھر غور و فکر، مہربانی یار، بہت شکریہ حضور، پھر غور و فکر شروع ہو جاتا ہے، دل کی آنکھ کھل جائے، ورنہ تو بسم اللہ پھر پڑھو، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن دل کی آنکھ کھل جائے پھر بندہ حقیقت میں کھو جاتا ہے، پھر سوچنے لگ جاتا ہے رحمان ہے تو کیوں؟ کافی نہیں تھا بسم اللہ الرحمن، کافی نہیں تھا بسم اللہ الرحیم، رحمان بھی رحیم بھی۔ جب تفسیر آل محمد کو علی صابر بھائی بات جو نظر آئی وہ بڑی کمال تھی۔ نچوڑ یہ تھا اگر کوئی غور کرے تو رحمان وہ سب کے لیے ہے، مگر رحیم وہ چند کے لیے ہے۔ بہت شکریہ بھائی کی جملہ کہنے میں نے آپ کو تھکانا نہیں ہے۔ رحمان وہ سب کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے، رحیم چند کے لیے ہے۔ اب بندے کہیں گے سید یہ ہمیں سمجھ نہیں آئے، ارے بھائی رحمان ہے وہ سب کے لیے جو بھی اس کی کائنات میں اس کی مخلوق ہے، رحیم ہے صرف ان کے لیے جو اس کے کرم پہ غور کرے۔ جو اس کے فضل پہ غور کرے۔ اور میرے خطاب کے بعد صابر بھائی کو کہے گا سید بات تو کر گیا، اس کے فضل پہ غور کرے۔ سید نے بتایا نہیں اللہ کا فضل کیا ہے، میں کس طرح بتاؤں ان کو جنہوں نے کوٹھیوں کے بعد لکھ دیا ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی، ہاذا من فضل ربی۔ ان کو کیا پتا اللہ کا فضل ہوتا کیا ہے؟ سلمان سے کسی نے پوچھا تھا سلمان فضل ربی کیا ہے؟ سلمان علی کو دیکھ کے کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی۔ اٹھے مار لے اچھا صابر بھی مجھے دوران خطاب ایک چھوٹی سی بات تو بتائیے گا۔ لاہور جانا ہے، جہاں سے آئے ہیں وہ انٹرچینج سے، ادھر سے راستہ ٹھیک نہیں تھا، شارٹ راستہ بھی ہے جو انٹرچینج کوئی اور لے جائے۔ یہ گوجرا، اچھا چرا یہاں سے کتنا دور ہے؟ چلنا 20 انشاءاللہ 9 سوا 9 خطاب کا ٹائم ہے۔ ہیں جی چراغ بہت خراب ہے، اچھا چلو بس اندازہ ہو گیا کتنا ٹائم لگے گا۔ میں نے کہا کہ مومن انتظار کر رہے ہوں گے، تھوڑا سا میرے ذہن میں ایک سکیچ بن جائے، اس حساب سے میں یہاں سے نکلوں۔ بات کیا چل رہی تھی؟ دل کی آنکھ، دل کی آنکھ، دل کی آنکھ جس کی نہ کھلے وہ سارا دن رونے روتا نظر آئے گا۔ مجھے وہ تنگ کرتے ہیں، مجھے وہ ڈسٹرب کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں بھی بے سکونی ہے۔ جس کی دل کی آنکھ کھل گئی وہ چٹنی سے روٹی کھا کے بھی شکر کرے گا۔ میں بہت بڑا میسج دے کے جا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ آپ کی کیا کہنے ہیں، آپ کے میرے سماعت کی کیا کہنے ہیں، وہ ہر حالت میں آپ کو شاکر نظر آئے گا، شکر کرتا نظر۔ اور تجھے کوئی رولا نہیں شکر ہے، اس نے جس حال میں رکھا میں راضی ہوں۔
दिल की आंख ना खुली, हजूर एक और जुमला बड़ा कीमती है, ना खुली लबैक 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 या हुसैन, खोल गई सोच के बोलेगा लबैक। लबैक का मतलब है मैं हाजिर। मैं जहाँ से नाम आपका पूछा था याद है ना, मैंने कहा आपका नाम क्या? साबिर भाई। साबिर भाई ये डॉक्टर साहब आपके, डॉक्टर गजनफर नाम है इनका, डॉक्टर जाफर साहब, ये आपके इलाके के है ना? अच्छा बिस्मिल्लाह। लो जी साबिर भाई डॉक्टर जाफर साहब पे बड़े मेहरबान हैं। क्या करते हैं? डॉक्टर साहब के लिए कमर पीछे दुआ करते हैं। माशाअल्लाह। साबिर भाई डॉक्टर साहब के लिए खुदाया इसे सलामत रखना, खुदाया इसके करीब परेशानी ना जाए, खुदाया आले मोहम्मद के सदके इसको बरकत देना, दुआएं करते हैं। अच्छा किसी चीज़ की ज़रूरत होती है किसी न किसी ज़रिए से भिजवा देते हैं। लबैक समझाने लगा हूँ, अगर समझ आ जाए तो किसी न किसी ज़रिए से भिजवा देते हैं। इन्होंने पूरी बस्ती ऐलान कर रखा है, खबरदार मैं साबिर कह रहा हूँ किसी ने डॉक्टर जाफर की तरफ कोई निगाह डाली मैं छोड़ूंगा नहीं, इतनी मेहरबान है। एक दिन साबिर भाई ने कहा जाफर मेरा ये काम तो कर। डॉक्टर साहब कहने लगे साबिर देगा क्या? मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए दी है, बंदे कहने लगे ओए शर्म कर, उसके एहसान तो देख, अभी कहता देगा क्या? किसी को शायद लब्बैक समझ आ जाए, किसी को शायद, मेहरबानी यार, किसी को शायद लब्बैक समझ। लब्बैक का मतलब है मैं हाजिर, तो ऑर्डर लगा। मैंने कहा दिल की आंख खुल जाए ना, फिर लब्बैक का मयार और है। फिर बंदा कश्तियां जला के कहते हैं हुक्म कर, मैं तैयार हूँ। अगर हुक्म आ जाए ये छोड़ लब्बैक, ये कर लब्बैक, खड़ा हो जा लब्बैक, सो जा लब। एक सख्त बात भी करता जाऊं, अभी तो मोहब्बत की बातें कर रहा हूँ, खड़ा सख्त बात भी करता जाऊं। साबिर भाई जाफर भाई बड़ी सख्त बाजी, सख्त बातें थोड़ी कड़वी होती है लेकिन फायदेमंद बहुत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, खूबसूरत बात फरमा रहे हैं। साबिर जो है सख्त बात करने लगा हूँ। जिसकी दिल की आंख खुल गई उसने सोच के जब लब्बैक कहा मौला को, मिंबर की अजमत की कसम, फिर वो जिंदगी में मन्नतें नहीं मानता। मैंने कहा चलो सख्त बात ही कर जाओ ना, कोई बात नहीं, भाई साहब ने मुझे इजाजत दे ही दी, वो मन्नत नहीं मानता। वो क्या कहता है? वो कहते हैं जैसे तू राजी वैसे मैं राजी। अच्छा नहीं, मैं एक छोटा सा वाक्य आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूँ, बस इसी वाक्य पे आपसे इजाजत लेता हूँ। अच्छा वो भी बताता हूँ, पहले वाक्य अर्ज कर दूँ फिर मैं वो अर्ज करता हूँ। अली बादशाह का दौर है, मेहरबानी याद फरमाने का, बहुत शुक्रिया, खुदा सेहत ईमान सलामत रखे, मेहरबानी फरमाई, इन्होंने याद फरमाया। मैं वो भी अर्ज करता हूँ, जल्दी जल्दी अर्ज करूँगा। अली बादशाह के दौर में एक अली के आशिक ने गलती से चोरी कर ली। अच्छा, गलती हो गई। अच्छा। पकड़ के मौला के पास ले आए। अच्छा। सरकार से मोहब्बत बड़ी करता है। अच्छा। सरकार ने पूछा, बैठे थे तख्ते करम पे, पूछा चोरी की? जी मौला की है। किसी ने कंधा हिला के कहा अली ने कौन सा देखा है? तो कह दे मैंने नहीं कहना। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। कंधा हिला के कहा, ऐसे मार के कहा, कह दे अली ने कौन सा देखा है? कह दे मैंने नहीं की। तू नहीं जानता ऐनुल्लाह कौन होता है? अली 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 आपने इतनी मोहब्बत फरमाई, एक सख्त बात मैं फिर और करके जा रहा हूँ। डॉक्टर जाफर मजमा संभालना, आपने बहुत तायीद फरमाई। ओए सुन, ऐनुल्लाह के सामने झूठ नहीं बोला जाता, ऐनुल्लाह सब कुछ देखते हैं। हाथ बांध के सैयद होके कह रहा हूँ, जब गुनाह करने पे दिल बन जाए एक दफा सोच लिया कर, ऐनुल्लाह देख तो नहीं रहा। हाय 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 हाय, एक सख्त बात करके जा रहा हूँ। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी यार। आपके क्या कहने, मैं यार समाज के क्या कहने। मेहरबानी, ये थी सख्त बात, लेकिन भाई साहब फरमा रहे थे ना अच्छी होती है। कुछ एक दफा सिर्फ सोच लिया करो, मौला देख तो नहीं रहे? यकीनन देख रहे हैं। क्या कहेंगे? मेरा हो के ये
से है ना? भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा चोरी, मौला ने फरमाया चोरी की? कहा जी मौला गलती हो गई। सरकार ने फरमाया जल्दी करो मैं हद जारी करूंगा, इसका दायां हाथ काटो। ले जाया गया, तलवार मारी गई, दायां हाथ कटा। बस मैंने 1 मिनट में 2 मिनट में पढ़ना है वाकया, इससे ज्यादा नहीं है तो बड़ा तवील। ये वो वाकया जो अहले सुन्नत उलमा ने भी लिखा है। लो जी हाथ कटा, राजी है, कटा हुआ हाथ हाथ में लिया, दूसरे हाथ में कटा हुआ हाथ लेके जा रहे हैं। वाह या अली, वाह या अली, वाह या अली। भाई क्या बात है, ये है आशिक। शाबाश, मेहरबानी डॉक्टर जब। वाह या अली, वाह या अली, शिया सुन्नी दोनों कुतुब में लिखा है वाह या अली, वाह या। वो गुन गा रहे, कटा हुआ खून भी बह रहा है, वाह या अली, वाह या अली। आगे एक ज़हन का बीमार मिल गया। सैयद है ना, सख्त बात तो नहीं करते किसी से भी, मोहब्बत से बात कर जाते, चाहे कोई भी है, समझने वाले समझ गए। ज़हन का बीमार बन गया। उन्होंने कहा क्या माजरा है? उन्होंने कहा गलती हो गई। ये फिर वो मौला ने अदल किया, मेरा हाथ काटा। उन्होंने कहा किस मौला ने? कहा मौला अली बादशाह, मौला जो इस वक्त हाजिर और मौजूद है, उन्होंने ही करम फरमाया। कहने लगा तू अजीब बंदा है, उन्होंने तेरा हाथ काटा तो कहते भाई अली। ये है मयार इश्क, बहुत शुक्रिया। उन्होंने तेरा, मेहरबानी हजूर, मेहरबानी हजूर। उन्होंने तेरा हाथ काटा तो कहते हैं भाई अली। भाई मिल जाते हैं ना कहीं, मिल जाए तो वो उन्होंने हाथ काटा तो कहते हैं भाई अली। कहते नहीं, उन्होंने शफकत फरमाई, उन्होंने मुझ पे एहसान किया। उन्होंने कहा वो क्या एहसान किया? अब ये गुफ्तगू जारी थी, अली का सलमान आ गया। सरकार सलमान खड़े होके सुनने लगे, ये गुफ्तगू क्या करते हैं। लो जी गुफ्तगू शुरू। उन्होंने ये बताने लगा अली बादशाह का एहसान है, उन्होंने दुनिया में ही हाथ काट के आखिरत की सजा से बचा लिया। आपके क्या, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। आखिरत की सजा से बचा लिया। मौला ने शफकत फरमाई, एहसान फरमाया, हाथ काट के आखिरत की सजा। वाह या अली, वाह या अली, वाह। तू ये अजीब है, उन्होंने तेरा हाथ काटा, कम से कम तेरा मौला है ना, अपने मौला को कहता ना मौला इतना तो रहम करना। कहने लगा नहीं, आदिल आदिल है, जो उसकी मर्जी, जैसे वो राजी हम वैसे। जनाब सलमान जल्दी जल्दी मौला के पास पहुंच गए। शिया था ना सलमान, शिया था ना भाई साबिर। चलो एक थोड़ा छोटा सा तोहफा और भी देता जाऊँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, बच्चे जवान बैठ के, इस बात की जरूर रिकॉर्डिंग करना, और जहाँ तक मिले मौका इसको फैलाना, जो जुमला मैं अब कहने लगा। मौला से अच्छा मुझे भी भाई साबिर नहीं पता था शिया और मुहिब का फर्क क्या है। मैं कहूँ मुझे पता था नहीं, जब तक मैंने पढ़ा नहीं। बड़ा फर्क पता चला, और जब से पता चला मेरी ख्वाहिश है मैं हर मेंबर पे अर्ज करूँ। याद रखना हर दौर में मुहिब काफी रहे, शिया कम थे। बंदे कहेंगे, डॉक्टर जाफर कहेंगे सैयद हमारे मेंबर पे बात करके जाते, पूरी तो करके जाते। लो जी जाफर भी मैं पूरी करने लगा हूँ। वाकया कुछ इस तरह है, एक बंदे को कोई पकड़ के लाया आपके 11वें इमाम की खिदमत में। मौला ये बंदा दावा कर रहा है मैं शिया हूँ, जबकि मैंने इसे किसी शुबे में पकड़ा है। ये कहता है मैं शिया हूँ। मौला ये शिया है, तस्दीक करे, तस्दीक है। सरकार फरमाती ये शिया नहीं, ये बेचारा मुहिब है। सरकार मुझे आज पता चला मुहिब और शिया और मुहिब और शिया और। सरकार फरमाते सुन, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। जब से मैंने पढ़ा है मेरा दिल है मैं हर मोमिन आजाद था। मेहरबानी। जो हमसे मोहब्बत करे उससे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें। जिसको समझना हो ना, घर में बच्चे तो होंगे खैर से आपके, 2-3 बच्चे, खुदा तुम्हें और मौला के नासिर दे, बहुत सारे दे, मातमी बहुत होने चाहिए कभी, मगर अपने लिए ना मांगा करो, बड़ा तंग करेंगे ना। यकीन करो अपने लिए नहीं, बल्कि जब पैदा हो ये ना कहा अगर मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, बड़ा तंग करते हैं। आते ही कान में अजान और अकामत के साथ कह देना महदी की अमानत। ये है मेहरबानी हजूर, मेहरबानी। लो जी बच्ची हैं, फर्ज करो तुम्हारे 2, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, बच्चों की कैफियत मुख्तलिफ होती है। आप कोशिश करते 2 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं, सब पे मेहनत करके ट्यूशन भेजते हो,
سب کو پڑھاتے ہو، اسکول پڑھاتے ہو، کالج پڑھاتے ہو، لیکن ہوتا ہے ایسے ہے 2 پڑھ جاتے 2 نہیں پڑھتے، 2 لائق نکل جاتے ہیں، 2 کوئی ریڑھی مزدوری پہ چلے جاتے ہیں. لیکن آپ کی خواہش تھی، خدا نے آپ کو دیا تھا، ان کا صدقہ آپ کی خواہش تھی میں سب پڑھاؤں. بس جو باپ کی مان کے باپ کو راضی کر گیا اور اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں باپ دیکھنا چاہتا تھا، وہ شیعہ ہے. ایسے مختصر مثال میں آپ کی خدمت میں کیسے گزر. آپ کی کیا بات ہے، مہربانی مہربانی حضور بھائی، بہت شکریہ حضور. لو جی جناب سلمان، مولا کائنات آقا معظم، وہ جس کا ہاتھ آپ نے کاٹا نہیں بھی عدل فرمایا. مولا میں تو ایک عجیب چیز دیکھ کے آیا ہوں، مولا ہاتھ کٹوا کے کہتے بھائی آئلی، ہاتھ کٹوا کے کہتے بھائی آئلی بھائی آئلی. سلمان کیا چاہتا ہے؟ مولا میں تو غلام ہوں، غلام کی تو اپنی مرضی نہیں ہوتی. سرکار آپ اولی الامر ہیں، جیسے آپ چاہیں. سرکار فرماتے چلو اس کو بلا لاؤ. اس نے سارا کچھ بتایا، ایک مل گیا اور اس طرح، حالانکہ اس کو بتایا یہ بھی ہمارے تک کتابوں کے ذریعے پہنچا جو سب کچھ جانتا ہے. بلا کے لاؤ. یا علی نے بلوایا، قریب آ گیا. ہاں بھی سنا واہ یا علی، کٹا ہوا ہاتھ ہے. یہ علماء اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے لکھا ہے. سرکار نے اس کا ہاتھ قریب رکھا، اوپر کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے علی بادشاہ نے زیر لب کچھ پڑھا. پڑھنے کی دیر تھی، ہاتھ جڑ گیا. بندوں نے پوچھا یا علی اس وقت اور اس وقت میں فرق کیا ہے؟ مولا فرماتے سن، وہ میرا عدل تھا، یہ میرا قلم ہے. مہربانی. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سما. بس کوشش کرنا، میرے آنے کا مقصد یہی تھا، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے. ڈاکٹر جعفر میرا قطن مقصد یہ نہیں تھا کہ مجھے 4-10 وارے ملے. میں بہت مصروف ہوں، ٹائم ہی نہیں ہوتا. کوشش ہوتی ہے جس طرف جائیں 3-4 پروگرام ہوں تو جاؤں. پیٹرول تو حلال کر کے آؤں نا. صبر بھی نے کچھ نہیں کہنا، آپ ایزی ہو جائیں، بے شک لگاتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ آپ نے، جب میں نہیں تنگ ہو رہا آپ کو تنگ ہوتے ہیں. بھئی ان کی ہم نے قدر، خدا کی قسم صابر، میں اسلام ان سے سیکھتا ہوں. مجھے انہوں نے اسلام سکھایا ہے، کتابوں میں میں نے پڑھا پر انہوں نے سکھایا. اچھا کرتے کیا ہیں، چھوٹی سی بات پہ لڑ پڑتے ہیں، اسی وقت صلح ہو جاتی ہے. مہربانی مہربانی. ایسے بیٹا چھوٹی سی بات پہ جھگڑ پڑتے ہیں، اسی وقت ایک ہو جاتے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم اگر ایک بات پہ لڑ پڑے تو ہم 6-6 سال بات ہی نہیں کرتے. ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی تیسرا آئے صلح کرائے. یہ ہے اسلام. خدا کی قسم جس گھر جائیں کوئی عورت پردہ ہی نہیں کرتی. کیوں؟ یہ مرد نہیں. ہائے اسلام ان سے سیکھا کرو. کیوں؟ یہ کسی کو دیکھیں بھی صحیح تو نہیں دیکھتے، یہ اپنی کھیل میں لگے رہتے. ان کو پتہ یہ بھی ماں جیسی ہے. مہربانی مہربانی مہربانی. بڑا انہوں نے مجھے اسلام سکھایا ہے، بڑا میں ان سے اسلام سے. یہ 4 مرلے کا گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، جھوپڑی ہو، یہ راضی رہتے ہیں. انہوں نے کبھی باپ سے نہیں کہا او دے کول آئے تھے ساڑھے کول نہیں آئے گا. نہیں، یہ اسلام ہے، یہ راضی ہے. یہ اور بھی بہت ساری چیزیں پھر کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا. میرے واجب الاحترام نے میرے سے مجھے یاد دلایا، فرمانے لگے وہاں سوال ہوئے تھے. لو جی سوال یہ ہوا تھا اس وقت امام زمانہ ہی کیوں ضروری ہے. بڑا پیارا سوال ہے اور مختصر سا جواب عرض کرتا ہوں، سنیے گا بابا جی. ہر بندہ شعور رکھتا ہے. ڈاکٹر جعفر بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، مجھے آگے بھی پہنچنے میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں انتظار کر. ہر بندہ شعور رکھتا ہے. ذرا میری طرف دیکھیے گا. کیسا؟ بھائی صابر سے پوچھیں صابر بھی کیا کرتے ہیں؟ کہیں گے شاہ صاحب میں کاروبار کرتا ہوں. بے شعور ہے تو کرتے ہیں. بالکل. ارے بھائی پوچھیں تو صحیح کرتے کیوں ہیں؟ کہ لگے کاروبار کروں گا، منافع کماؤں گا، گھر چلاؤں گا، مجلس کراؤں گا، لنگر پکاؤں گا، سرکار کا صدقہ زیادہ اکٹھا ہو گیا، ان کا صدقہ امام بارگاہ ان کے کرم سے بنواؤں گا، زیارات پہ جاؤں گا. یہ گا گا گا، یہ مستقبل.
मैंने कल ये काम किया था, ये माजी। आज 23 फरवरी है। मैं आया जाफर भाई के पास, मैंने कहा जाफर भाई मुझे 21 फरवरी की मजलिस में जाना है, 21 फरवरी 2025 की। कहने लगे शादी कैसी बात कर रहे हो, वो तो हो चुकी है, वहां तो नहीं जा सकते, जो हो रही है वहां चलो, या जो होगी। और फरमाइएगा, पर तोहफा देने लगा हूँ, संभालिएगा। जो हो चुकी वहां नहीं जा सकते, जो होगी या हो रही है वहां चलते हैं। इसका मतलब हर काम मुस्तकबिल। साबिर भाई आजकल सुना है घर बना रहे, जी सैयद बना रहा हूँ। साबिर भाई क्यों बना रहे हैं? सैयद घर बनाऊंगा तो इसमें रहूंगा। अच्छा साबिर भाई आपके भाई क्या करते हैं? कहने लगे सैयद वो नौकरी करते हैं। अरे भाई वो क्यों करते हैं? कहा शऊर वाले हैं, नौकरी करेंगे तो तनख्वाह लेंगे। उठूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, लूंगा, करूंगा, रहूंगा। फिर कोई पूछे ना इस वक्त मजलिस में क्यों जा रहे? कहा कर वो होर था मैं बनूंगा। इसलिए मैंने इतनी बड़ी मिसालें आपकी खिदमत में हल की हैं। मेहरबानी, वो फिजा थी मैं बनूंगी। अरे भाई अगर तू होर और फिजा बन गया, कहा होर बनूंगा, फिजा बनूंगी तो इमाम के काबिल बनूंगे। इमाम ज़माना इमाम ज़माना क्यों जरूरी है? अल्लाह ने सारे चांद भेजे, चांद एक ही था, मुख्तलिफ दौर में भेजे। जैसे रजब का 14वीं का चांद, शाबान का 14वीं का चांद, रमज़ान का 14वीं का चांद एक जैसा। महीनों के नाम मुख्तलिफ है, चांद एक जैसा। सारों की तस्वीरें बना के देखना एक जैसी, नेट से खोल के देखो एक जैसी। लेकिन खुदा का निज़ाम ऐसा है, 14वीं के चांद की चमक ऐसी है कोई छुप नहीं सकता। शाबाश, पहुंच जाने को सलाम है, पहुंच जाने को सलाम है। मुश्किल बात थी, सलाम है मयार समात को। छुप कोई नहीं सकता, कोई भी कहीं छुपना चाहे। 14वीं के चांद की रोशनी ज्यादा है। और सुन, पहली का चांद देखना पड़ता है, 14वीं का खुद नजर आ जाता है। इमाम ज़माना क्यों जरूरी? अल्हम्दुलिल्लाह सब नमाजी हैं, मैं भी अभी मगरिबैन पढ़ूंगा, थोड़ा सा लेट हो गए। लो जी, नमाज के बाद हम सब तस्बीह और ज़ियारत पढ़ते हैं ना। इमाम ज़माना क्यों ज़रूरी है? बाबा जी मित्र देखना, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पढ़ते पढ़ते करबला, काज़मा, नजफ। पता नहीं क्यों इमाम ज़माना ज़रूरी है, जो ही नाम आए। भाई क्या बात है। बस एक मुख्तसर जवाब सुन ले, तुझे मुझे क़यामत के दिन ये कह के नहीं उठाया जाएगा उठ अली के दौर वाला खड़ा हो जा। हमें कहा जाएगा खड़ा हो जा महदी के दौर वाला। बहुत शुक्रिया इमाम ज़म, बहुत वसी टॉपिक है, अशरे चाहिए सरकार पे गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन ज़रूरी है। भाई जाफ़र आपकी खिदमत में गुजारिश अर्ज़ करके जा रहा हूँ, ये तो खैर से आज मजलिस हो गई। नेक्स्ट टाइम आपने जिसको फ़ोन करना है ना, उसको कहना है तैयारी करके आ, हमें ये भी बताओ वो हुर कैसा था, और ये भी बता महदी का हुर कैसा होना चाहिए। बहुत डॉक्टर जाफर अहम टॉपिक है आपके मकतब तशय्यो का, जिस पे गुफ्तगू नहीं हो रही। उसको कहते बच्चों रजत, रजा, उठना, पलटना, फिर वापिस आना। बस एक ही जुमला अर्ज करता हूँ और बस ये हाली बताते नहीं, काफी समझना। रजअत डॉक्टर जाफर, पलटना, उठना, फिर वापिस आना। शिया वो है, छठे इमाम फरमाते जिसका रजत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। रजत ला, मैं बच्चों तुम्हें बताता जो रजत में होगा क्या। अगर हम तैयार हुए और इंशाल्लाह हमने दिल की आंखें खुलवा ली, तो पहला कदम जंग, दूसरा काबा में होगा। शाबाश बेटा। और हाँ, घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया से भी चले गए, परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी कब्रों पे आएगा। ये आपके मकतब की बहुत सारी दुआएं हैं। उम्मीद तो है यहाँ इसका तारुफ हुआ होगा, कोई उलमा आए होंगे, नहीं तो आज मैं कराने लगा हूँ। आपके मकतब की बहुत सारी दुआएं कमाल है, लेकिन एक दुआ बाकमाल है। दुआ कुमैल क्या बात है, हदीसे किसा क्या बात है, लेकिन एक दुआ है जिसकी क्या ही बात है। वो आपके छठे इमाम ने तालीम फरमाई, नाम है दुआए अहद।
माशाअल्लाह। छठे इमाम ने फरमाया जो ये रोजाना तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा। साबिर भाई 19 साल हो गए मुझे शिया मिंबर पे बांटते बांटते, लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है। वो कहते सैयद हमारी तरफ से जरूर बांटना। मैंने उनको कहा एक दिन की बात है, मैंने उनको कहा यार आप हर दफ़ा मेरे इतने सारे दुआ है तो मुझे देके कहते हो शाह जी बांटना, तुम्हारे लिए मैं दुआ भी करवाऊँ? इतनी आप मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, कोई मैं मोमिनों को कहूँ तुम्हारे हक में दुआ करे? खुदा की कसम उनका जुमला कमाल था। कहते सैयद तेरी तकरीरें सुन सुन के हम इस मयार पे आ गए, अगर उसकी दुआ ना होती हम छपवा ना सकते। साबिर भाई ये है मयार, ये मेहरबानी। वो दो अहद आपके लिए आई है, हम आपको देंगे। बाहर नौजवान आए हैं लाहौर से, अपने अपने काम छोड़ के कहने लगे हम इमाम की नुसरत के लिए सैयद आपके साथ चलते हैं। वो दो अहद ले लीजिएगा और एक शफकत फरमाइएगा, उसका तर्जुमा जरूर पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। अरबी खैर से पढ़ तो सारे लेते हैं, जब तक तर्जुमे से आगाही ना हो हकीकत से आगाही नहीं होती। लो जी दुआ अहद। छोटे इमाम फरमाते मेरा बेटा कब्र पे आएगा, आएगा, बंदा कफन झाड़ता हुआ बाहर निकलेगा। अल्लाह अकबर। ये है रजत। जाफर भाई जब आप कहोगे ना पढ़ने वालों को कुछ तैयारी करके आएंगे और बताएंगे, ओ इनको पता तो चले इन्होंने करना क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या, इनकी गर्दन पे हकूक क्या, इन्होंने मौला के लिए तैयार कैसे होना। इतने सारे बैठे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसे ऐसे सिलसिले चलाते रहे आप लोग बानियान हिम्मत करके, तो एक दिन जरूर आएगा महदी के वफादार तैयार हो जाएंगे। और मेरा दिल मानता है साबिर मैं ऐलान करके जा रहा हूं, क्या बात है सलमान की, क्या बात है हुर की, मगर महदी के वफादारों की क्या बात है। क्यों? देख के मानना और है गैबत में मानना। बहुत शुक्रिया। कब्र पे आएगा बस ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। मेरा दिल है मैं भी अली अकबर के दो जुमले कह जाऊं, क्योंकि वो उनको शायद जल्दी थी या हमें जल्दी थी, वो जल्दी जल्दी पढ़ के चले गए। मेरा दिल है मैं दो चार जुमले अली अकबर के कह जाऊं। सरकार कब्र पे आके कहेंगे उठ मैं आ गया। साबिर भी मैंने एक जुमला कहना बड़ा कीमती है, उसके बाद मैं मसाइब शुरू करता हूँ। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। अस्सलामु अलैका या बकियतुल्लाह। सरकार आप मेरी कब्र पे? फरमाएंगे मैं सच्ची माँ का सच्चा बेटा हूँ, हम रखते किसी का नहीं। तो उठता मेरे लिए था, तो बैठता मेरे लिए था, तो नौकरी मेरे इंतजार में करता था, तो कारोबार मेरे इंतजार में करता था, तो नमाज पढ़ता था, अल्लाह से कहता था मेरी कलील इबादत तेरी बारगाह कबूल हो जाए, महदी दौरा के चेहरे की जियारत करा दे। तो हर जगह मुझे तलाश करता था, हर वक्त मुझे याद करता था। तुझे नहीं पता याद से याद होती है। लो जी एक लम्हे के लिए मैंने एक मंजर दिखाना है, ये बड़ा बस समझ लो पूरी तकरीर का निचोड़ है। साबिर भी होगा क्या, अचानक कब्र से उठने वाला या उठने वाली दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौला वो जो दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? ये दलील है मरा नहीं सोया था। हाय 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 हाय। मेहरबानी जब वो कहाँ चले गए, मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई। हजूर 2 मिनट सिर्फ मैं आपके, बल्कि 1 मिनट चाह रहा हूँ बस फजाइल का, उसके बाद मसाइल शुरू करता हूँ। लो जी सरकार वो कहाँ चले गए जो आए थे दफनाने? मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा नाना, मेरा ताया, वो कहाँ चले गए? सरकार फरमाएंगे याद कर, जिनको तू मेरे मेरे कह रहे हैं ना, अगर वो तेरे होते तुझे मैयत ना कहते। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सब ने कहा था सांसों की डोरी तक था, ऐदरी या अली सांसों की डोरी का ताल्लुक था। सब ने कहा उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ। सब ने रिश्ता तोड़ दिया। फरमाएंगे मुझे पहचान, जिनको तो कहते ना मेरे मेरे, सब छोड़ के चले गए। असल में तेरा मैं हूं जो यहां मौजूद हूं। बस बड़ी शफकत फरमाई आपने, बड़ा टाइम दिया, मोहब्बत फरमाई, बड़ा इंतजार किया, मजबूरी थी।
बड़ी दूर से चलते चलते आप तक पहुंचे, लेकिन मेरा दिल मानता है तुम थक गए हो, शाम से आने वाली भी आई बैठी है। हाय बड़े दूर का सफर करके अल्लाह अकबर। मदीने वाली भी लिखा है कुतुब में आती है, शाम वाली भी आती है, आके पर्दे में बैठी होती है। उलमा ने लिखा है तफसीर में, कहते हैं जब मोमिन रो के चला जाता है ना यहाँ से, माँ बेटी आती है उस मकाम पे उस मकाम पे उस मकाम पे, बेटी माँ को कहती है अम्मा इन्होंने तो मेरा अकबर उतरते भी नहीं देखा। 4 हस्तियों का प्यार है अली अकबर से। एक पहली हस्ती है वो बहन जिसने अकबर से कदमों के निशान लगवाए थे। अकबर के हिस्से की बहन वो बीमार मदीना जिसने अकबर से जाते जाते कहा था मैं मर जाऊंगी, कदमों के निशान तो लगा जा। एक ये हस्ती है। एक हस्ती है वो कि जिसने शब आशूर जब अकबर आया था ना मिलने, उस वक्त सजदे में थी। जनाब फिजा ने आवाज दे के कहा बीबी जब सजदा तमाम कर लो जरा देखना तेरा अकबर आया बैठा है। उस बीबी ने अकबर को जल्दी जल्दी सजदे से उठ के सर जानों पे रखा, रख के कहती 18 साल हो गए इंतजार में थी, आज अम्मा तो बुला। एक ये माँ है। दूसरी हस्ती, तीसरी हस्ती इशारों में गुजर जाऊंगा। साबिर भाई कितनी मोहब्बत है अकबर से, जहां जहां नेज़े पे अकबर का सर बुड़ता है हुसैन बादशाह का सर उसी तरफ मुड़ जाता है। अल्लाह जाने कितनी अकबर से मोहब्बत थी। हाय हाय। चौथी हस्ती वो है जिसने पर्दों में पाला था, भेजती थी बाजार अकबर को, कह के भेजती थी अकबर नकाब करके जाना नजर न लग जाए। मैं सारा मजमून छोड़ के भाई साबिर मैंने 2 जुमले कहने हैं। मौला हुसैन गए लेके आए, बिरादर मोहतरम पढ़ रहे थे मेरे से पहले सरकार के मसाइब। मौला हुसैन अकबर को ये कह के गले में मेरे बाहें डाल, मैंने तुझे खेमे ले जाना है। खेमे लेके आए। साबिर भाई आके लिटाया बेटे को, बीबियों ने हल्का बनाया। अली अकबर के मसाइब में कोशिश करना बेगौरी न करना। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ, पता नहीं क्यों ज़हन बन गया, शायद शाम वाली सुनना चाहती है। बीबियों ने हल्का बनाया, सर में खाक मिलाई, वह जवाना वह गुरबता गिरिया करने। अचानक इमाम हुसैन की निगाह पड़ी। अम्मा फिजा मुझे अकबर की माँ नजर नहीं आ रही। अम्मा फिजा जरा जाना बेटिया, मैं तुम्हारे लिए एक जुमला पढ़ने लगा। अम्मा फिजा जाना, अकबर की माँ को कहना अकबर चंद लम्हों का मेहमान है, जल्दी आके मिल ले। बीबी को जाके जब देखा जनाब फिजा ने, कैफियत अजीब थी। बेटियां आप देख तो नहीं सकती, सिर्फ सुनते रहना बाबा। कैफियत ये थी, अकबर की माँ उठती है बैठ जाती है, उठती है फिर बैठ जाती है, कभी एक जगह से पकड़ती है कभी दूसरी जगह से पकड़ती है। जनाब फिजा ने कहा का हुसैन फरमाने अकबर चंद लम्हों के मेहमान है। कहती अम्मा फिजा मुझे सहारा दे। जब से पता चला ना अकबर जीन से जमीन पे आया है, आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, मुझे नजर कुछ सय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कालिबूना या